Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 26 of class first year. Dear students, in last lecture we have completed chapter number 9. So now we are moving forward another chapter number 10, trigonometric identities. So पिछले lectures में हमने कुछ fundamental definitions study किए trigonometric के बारे में. So now another topic, this in trigonometric identities, a relation, related definitions and derivative of formulas. So dear students, trigonometric functions and trigonometric ratios. जबकि trigonometric functions हमने sin theta, cos theta, tan theta पिछले लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं. Those are called trigonometric functions. And trigonometric ratios are the value of function, trigonometric function for a particular theta is called trigonometric ratio. Theta, value of theta, trigonometric function के लिए कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू थीटा की उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे. आप चलते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी और डिफरेंस इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है. इक्वेशन कहते हैं पर्टिकुलर अननोन वेरिएबल का कोई भी एक वैल्यू जिस पे जो इक्वेशन आए वो ट्रू आए. किस तरह? सपोज करें x minus 1 is equal to 0. So both sides equation is equal to 0, that is called the true value. Equation at x is equal to 0 is true. An identity is that an equation which is satisfied for all value of variable in called identity. आइडेंटिटी उसे कहेंगे एक इक्वेशन के सारे वेरिएबल्स, सारे ऑल वैल्यू, एक वेरिएबल के सारे जितने भी वैल्यू पुट किए जाएं वो अगेन सेम आए, उसको आइडेंटिटी कहेंगे. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की स्टडी करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज सेटिस्फाई ऑल वैल्यू ऑफ एंगल. इसी तरह एक थीटा एंगल की सारी वैल्यूज़ पुट की जाए और उस अगेन सेम आ जाए, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सो फॉर प्रूफ देयर इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. In previous lecture, chapter number 9, we have studied this unit circle. Consider the unit circle in xy plane with the center origin. यहाँ पे center origin बना है O के साथ. R is equal to 1 है, X is equal to X axis, Y axis को शो कर रहे हैं, P is called point. And let theta be a measure of angle. Theta angle है. Cos theta is equal to base upon hypotenuse कहते हैं. सर बेस बराबर x के है और hypotenuse 1 के. तो cos theta is equal to x एंड साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है. इसी तरह साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन 1. सो वाई इज इक्वल टू साइन थीटा. बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आर स्क्वायर. सो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सो इट इज हेंस प्रूव. अनदर इनइक्वालिटी, अनदर प्रूफ इज दैट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा. सो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड किया जाए बोथ साइड तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो y अपॉन एक्स बराबर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा y अपॉन एक्स के बराबर होता है. तो इस हिसाब से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. Another, there is an equality 1 plus cot theta sec theta. अब यहाँ पे y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो x अपॉन y के हिसाब से. तो इस हिसाब से जो प्रूव आएगा 1 प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. Another now is the distance between two given points. वन पॉइंट P है, P1 है, दूसरी पॉइंट P2 है. So in plane such a line segment यहाँ पे P1 से P2 is not a parallel to each other. P1 और P2 they are called not a parallel. Let D be a distance between that point. Now by that triangle we have said P1 is other point, P2 is another point. X minus x2 minus x1 is a x-axis, y2 minus y1 is y-axis, D is the distance. So required formula D is equal to x2 minus x1 whole square is equal to y2 minus y1 whole square. Note that the derivation of a distance formula has been taken in the first quadrant. Derivation हमने first quadrant से ली है, but proof in general quit and hold a good for all quadrant. मतलब जहाँ पे proof की बात की जाए, proof is general है सारे quadrant के लिए. Another
डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ, यहाँ पे फंडामेंटल लॉज अब प्रूव करने हैं आइडेंटिटीज़ में। प्रूफ दैट कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, हमें ये प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला याद करना होगा। अल्फा प्लस बीटा कास अल्फा कास बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा, विच इज इक्वल टू अल्फा बराबर पाई अपॉन 2 के बीटा बराबर थीटा के। तो अगर cos पाई अपॉन 2 माइनस थीटा रखेंगे तो sin पाई बाई 2 cos थीटा, जस्ट फार्मूले में हमें पुट करना है। cos 90 बराबर 0 का होता है, cos 90 sin 91 के बराबर। तो हमने जब 0 रखा तो यहाँ पे 0 इंटू कॉस थीटा 0 आ गया, प्लस साइन इंटू 1 तो जवाब साइन थीटा आ गया। इसी तरह सेकंड आइडेंटिटी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसी तरह अल्फा माइनस बीटा साइन वाला फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे अल्फा पाई बाई 2 और बीटा थीटा के बराबर। फिर पाई अपॉन 2 इंटू कास है, पाई बाई 2 1 के बराबर, कास 0 बराबर। सो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 थीटा इज इक्वल टू कास थीटा क्या आएगा। इसी तरह टेन थीटा भी प्रूव कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू एज वी नो डेट पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, देन साइन पाई बाई 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जैसे कि टेन थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा का होता है, इसी तरह टेन थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा, सो साइन पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसी तरह cos माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा के बराबर होता है, तो cos अल्फा माइनस बीटा बराबर, अब अल्फा बराबर 0 के करेंगे, बीटा थीटा के, तो वो पुट करेंगे फार्मूला में, तो जवाब आएगा cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसी तरह साइन थीटा भी आएगा, और इसी तरह cos अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा साइन अल्फा बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा। तो बीटा माइनस बीटा के रखेंगे तो जवाब जो आएगा cos अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा cos अल्फा माइनस साइन बीटा आगे। इसी तरह देयर इज एन अदर इक्वलिटीज, ऑल दीज इक्वलिटीज लाइक दैट, सिमिलर इक्वलिटी इन अदर थीटा, प्रूव दैट tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा के होता है, तो जस्ट हमने फार्मूला वो रखना है, और माइनस थीटा साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, और कास माइनस थीटा कास थीटा के, सो माइनस टेन थीटा आ जाएगा। Another there is number 10 which you can prove easily, that all remaining identities you must have to remember, and you have to solve these all these trigonometric identities, and you have to send that assignment in your group. Thank you, dear students.